ہم ہماری زندگیوں کے لیے جو تو نے اپنی خادمہ کو دیا ہے خدا، ایک ایک زندگی تک پہنچے۔ میرے خدا تو ہے سب کچھ میرا، سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی تو، ہیرے موتی سے بھی زیادہ قیمتی تو۔ خداوند تیرا شکر، ہم تیری آواز کو سنیں گے، تو اپنی بندی کو استعمال کرے گا، یسوع کے نام میں آمین آمین آمین۔ تھینک یو لارڈ۔ خداوند کے بہت ہی خوبصورت نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں ان لمحات کے لیے، اس موقع کے لیے جو اس نے ہم دونوں کو دیا کہ ہم مل کر خداوند کی ستائش و پرستش کر سکیں اور کلام کے حصے میں سے کچھ سیکھ سکیں۔ کلام میں سے آپ کے لیے مرکز کی انجیل چوتھے باب کی 35 ورس سے پڑھوں گی، اور ہم سبھی اس حوالے سے بخوبی واقف ہیں۔ یہ مرکز کی انجیل ہے، اس کا چوتھا باب، اس کی 35 ورس۔ اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا، آؤ پار چلیں، اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں۔ تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ بس انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، ساکت ہو، تھم جا۔ بس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ پھر ان سے کہا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اور 41 ورس میں لکھا ہے، اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے، یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ آمین۔ جیسا میں نے پہلے کہا کہ یہ حوالہ بہت ہی اس طرح کا حوالہ ہے جو سب جس سے واقف ہے اور سب کو زبانی بھی یاد ہے۔ آج جب ہم ایک فیملی کی طرح سب اکٹھے ہیں تو یہ بات میرے دل میں خدا نے ڈالی کہ بے شک یہ ایسا حوالہ ہے یا ایسی باتیں ہیں جو ہم ہر روز ہی سنتے ہیں، مگر جب بھی میں خود بھی اس حوالے کو پڑھتی ہوں تو ہمیشہ یہ بات سوچ کر میرا ایمان تازہ ہوتا ہے کہ یسوع مسیح ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں اس حوالے میں جو سب سے امپورٹنٹ بات مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح ان سے کہہ رہا ہے کہ آؤ پار چلیں۔ خود یسوع مسیح ان سے یہ فرما رہا ہے، اور پھر وہ سب مل کر کشتی میں چلے جاتے ہیں، اور پھر طوفان آتا ہے۔ عارف کو معلوم نہیں تھا کہ میں نے کیا بات شیئر کرنی ہے، اور وہ بالکل شروع میں ہی ایک بات کہہ رہے تھے کہ ہم کب تک جو ہے کم اعتقادی میں رہیں گے۔ خداوند ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے زیادہ ایمان کو، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ، اس کی برکات، اس کے بہت سے وعدے ہیں، ہم نے بہت کچھ ایکسپیرینس کر رکھا ہے۔ یہ آج ہمارے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ ہم کیوں بے اعتقادی کا شکار ہوتے ہیں۔ بے شک شاگردوں کے اس رویے کو ہم دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، حالانکہ اگر ہم اس کے پچھلے باب کو پڑھیں، یعنی تیسرے باب کو پڑھیں، اس حوالے کو ہم دیکھیں تو وہاں بڑی ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے کہ کس طرح ایک بہت بڑی بھیڑ تھی جو یسوع مسیح کے اوپر گری جاتی تھی، اور لوگ اس کو چھونا چاہ رہے تھے کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ وہ شفا دے رہا ہے۔ لوگ اپنے لوگوں کو اس لیے لے کر آ رہے تھے یسوع کے پاس کیونکہ وہ بدروہیں نکال رہا تھا، کیونکہ جب یسوع مسیح کھڑا ہو رہا تھا تو بدروہیں چلا رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور یہ سب کچھ ہوتے کون دیکھ رہے تھے؟ وہ شاگرد جو ہر لمحہ یسوع کے ساتھ تھے۔ انہی لوگوں کے سامنے یسوع مسیح سارے معجزات کر رہا تھا، انہی کے سامنے عجیب عجیب کام ہو رہے تھے، اندھے دیکھ رہے تھے اور بدروہیں نکل رہی تھی کہ چلا رہی ہیں بدروہیں۔ لیکن جیسے ہی یہی شاگرد مشکل میں پڑے ہیں اور ان پہ آزمائش آئی تو وہ بھول گئے کہ یسوع مسیح نے ان سے پار جانے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ نہیں صرف کہا تھا کہ آؤ چلیں یا چلتے ہیں اور پھر دیکھا جائے گا کہ کیا ہوگا۔ یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ آؤ پار چلیں۔ جب یسوع نے کہا کہ وہ پار لے جائے گا تو اس نے لے کر ہی جانا تھا۔ ہمیں بھی
खुदावंद यीशु मसीह ने जान देकर बचाया है, और हम कई लोग तो हम में से ज्यादातर ईमानदार हैं, खुदावंद के साथ चलते हैं, और हमने यीशु की खुदावंद की मोहब्बत को एक्सपीरियंस किया है, किस तरह उसने हमें हमारे गुनाहों से निजात दी, उसने हमें धोया है, उसने हमें बचाया है। कई बार उसने हमें गहरे पानियों में से हाथ बढ़ाकर बचाया। लेकिन हर बार ऐसा ही क्यों होता है कि जब हम ज्यादा मुश्किल में आते हैं तो हमें लगता है कि खुदावंद तू कहाँ है? कई बार तो हम ये क्वेश्चन करने लगते हैं कि खुदावंद तू हमारे साथ है भी या नहीं, खुदावंद हम तुझे याद भी हैं या नहीं। हमें ऐसा लगता है कि कहीं खुदावंद हमें भूल तो नहीं गया। ये कलाम उन लोगों से ज्यादा ईमानदारों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो खुदावंद के साथ चलते हैं, उन लोगों के लिए है जो खुदावंद की खिदमत करते हैं। ये पैसेज हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमें चलते हुए खुदावंद के साथ कई अरसे गुजर गए। हमारे लिए खुदावंद ने बहुत कुछ किया है, लेकिन जैसे ही हम हालात मुश्किल आजमाइश में पड़ते हैं तो हम खुदावंद पर क्वेश्चन करते हैं। हमें भी ऐसा लगता है कि कहीं खुदावंद सो तो नहीं रहा, लेकिन यकीन मानिए खुदावंद हर किस सो नहीं रहा होता। वो ये जानता है कि हमारे दिल में क्या बात चल रही है, हमारे जहनों में क्या कुछ चल रहा है, वो हर चीज से वाकिफ है। लेकिन क्योंकि तूफान तो आ चुका था झील में, और शायद उसने ऐसा होने दिया कि वो पानी उस कश्ती में आता, और वो टेस्ट भी कर रहा था। वो देख रहा था कि कहाँ स्टैंड करते हैं मेरे लोग, कहाँ ये शागिर्द जिन्हें मैंने बुलाया है, जिन्हें मैंने इतने सारे लोगों में से चुनकर अलग किया है, इनका ईमान कहाँ तक पहुंच, ये कितना मुझे जाने हैं। और वो अभी भी हैरान हो रहे हैं। आखिर में जो हमने पढ़ा वो कह रहे हैं कि वो नहायत डर गए। अब वो इस बात से डर गए हैं कि ये कौन है जो हवा और पानी भी जिसका हुक्म मानते हैं। क्या उन्होंने पहले नहीं देखा था कि बदरूहें निकल रही हैं? क्या वो पहले मौजूद होते हुए नहीं देख रहे थे? वो सब कुछ देख रहे थे, तो भी वो करते करते ही खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला रहे हैं। वो बहुत वक्त ले रहे हैं, हर लम्हा वो खुदावंद के साथ गुजार रहे हैं। यीशु मसीह उनको बादशाहत, अपनी बादशाही की बातें बता रहा है कि आसमान की बादशाही इस तरह की होगी। वो उनको बीज बोने वाले की तमसील बता रहा है। वो उनको बहुत कुछ हिकमत की बातें, रूहानी बातें, ऐसी बातें जो दुनिया के लिए नहीं थी। वो हर रोज उनके साथ वो तमसीलों में बात कर रहा था। वो उनको बता रहा था कि इसका क्या मतलब है। आसमान की बादशाही यानी उसके दोबारा आने के बारे तक में वो बात कर रहा था। ये किस कदर खूबसूरत बातें थी जो यीशु मसीह कर रहा था, ये किस कदर बड़ी बातें थी जो वो उनको बता रहा था। लेकिन वो डर गए कि कहीं हम हलाक ना हो जाए। वो कह रहे हैं, झंझोड़ रहे हैं यीशु मसीह को, और वो कह रहे हैं कि तुझे नहीं पता कि हम हलाक हुए जाते हैं। वो किस कदर डर रहे हैं मरने से, और ये भूल गए हैं कि हमें तो वो पार ले जाने के लिए वो अपने साथ लेकर आया है। हम भी आज ये जरूर है कि हम गौर करें कि जब हमारे इर्द गिर्द मुश्किल है, जब हमारे इर्द गिर्द बीमारी है और बहुत तरह की मुश्किलात हैं, बड़े चैलेंजेस हैं, तो क्या हम भी खुदावन से ये तो नहीं कह रहे कि तू कहाँ है, तू है भी या नहीं। मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मेरे और आपके मसीहा ने, उसने कहा कि मैं जाता हूँ कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। जब उसने वादा किया है कि वो दोबारा आएगा, उसने ये वादा किया कि वो दोबारा हमें लेने के लिए आएगा, तो वो जरूर आएगा, वो हमें आकर पार ले जाएगा। कभी भी ये मत सोचे। मैंने कई बार ईमानदारों को ऐसे सवाल करते देखा है कि लेकिन अगर उसने ये कहा है तो फिर इसका मतलब क्या है। और जब ये लेकिन और अगर हमारी जिंदगी में आता है और हम यीशु मसीह पर इसको कहते हैं कि अगर यीशु ने ये कहा तो फिर ये कैसे होगा, इसका मतलब है कि हमारा इत्तेकाद जाता रहा है, या शायद हम उतना ईमान नहीं रखते जितना खुदावंद हमारे अंदर देखना चाहता है। खुदावंद की मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई है। खुदावंद ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अपनी जान दी है, अपने रूहुल कुद्स को नाजिल किया है उसने, और हमें अपने पाखरू से भर दिया है। और उसने ये वादा किया है कि वो फिर आने को है, वो फिर हमें ले जाएगा अपने साथ, वो हमें पार ले जाएगा। हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम कहीं भूल ना जाएं, हम उस भंवर में, उस तूफान में जो हमारी जिंदगी की कश्ती में आ चुका है, कहीं हम ये भूल ना जाएं कि यीशु ने तो वादा किया है कि वो हमें पार ले जाएगा। जब उसने ये कहा है तो वो बहनों भाइयों हमें पार ले जाएगा, वो हमें जरूर ही आसमान पर अपने साथ तख्त पर बिठाएगा। इस बात में कोई शक नहीं है। कभी भी कोई इंसान, कोई शख्स आपको, या इब्लीस खुद
आपको कहीं बहकावे में लाने ना पाए कि ना जाने ये सब कुछ है भी या नहीं, जिन बातों पर मैं ईमान रखे हुए हूँ, मैं ईमान रखता हूँ, वो कहीं झूठी तो नहीं है। यीशु मसीह ने जो कुछ कहा, उसने कहा कि जमीन और आसमान टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी, और ये सच है। यीशु मसीह ने कहा है कि वो आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा, तो हम ईमान रखें। बेशक हमारे इर्द गिर्द आज ऐसे हालात बन चुके हैं जिसमें ईमानदार भी परेशान है कि सब कुछ क्या हो रहा है, क्या ये हमारे लिए है। कई बार लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद ये खुदावंद हमारे लिए होने दे रहा है। हमें तो ये मालूम है कि अगर तूफान आया है, बेशक वो हमारी जिंदगी में आए भी, तो भी हमारा खुदावंद हमारे साथ होना चाहिए। आज अगर खुदावंद नहीं है, यीशु मसीह हमारी जिंदगी में नहीं है, उस कश्ती में नहीं है, तो ये भी बहुत जरूरी है कि वो हो हमारे साथ। सिर्फ उसका नाम होना या ये कह देना कि हाँ हम खुदावंद के नाम से कहलाते हैं, ये जरूरी नहीं है। हमें भी खुदावंद ने बहुत से लोगों को छोड़कर हमें चुना है अपने लिए, उसने हमें बुलाया है और वो हमसे बड़े ईमान की तवक्को रखता है। अब वो ये एक्सपेक्ट करता है कि हम बड़े बड़े स्टेप्स लें ईमान के, कि हम ये कहें कि हाँ हम जानते हैं खुदावंद हमारी जिंदगी की कश्ती में बेशक तूफान आ चुका है, बेशक हम मसाइल में घिर चुके हैं, लेकिन तू हमारे साथ है। और अगर ऐसा नहीं है तो भी खुदावंद यीशु मसीह की शादमानी हमेशा हमारे अंदर रहनी चाहिए। हम और लोगों को अपलिफ्ट कर सकते हैं कि बेशक हालात खराब हैं मगर खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है, उसने अब फिदिया देकर हमें छुड़ाया है, उसने हमें बचाया है, वो हमें ले जाएगा आसमान पर। ये एक बहुत बड़ी जिंदा उम्मीद है जिसको हम ईमानदारों को एक दूसरे को हर वक्त बताने की जरूरत है। हमें हर एक को याद दिलाने की जरूरत है कि यीशु मसीह जल्द आ रहा है, ताकि हम में से कोई भी सो ना जाए। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा था कि जागो और दुआ करो। ये जागना या बेदार रहना क्या है? ये जागना तो बहुत जरूरी है ताकि हम जागे रहें, ताकि हम बेदार रहें, हम एक दूसरे को जगाएं, हम एक दूसरे को बताएं कि यीशु मसीह जल्द आ रहा है। ये जो मुश्किलात हम आज देख रहे हैं, हर तरफ लॉकडाउन है, बीमारी है, वबा है, ये सब कुछ हमें क्या बता रही है? इससे हम परेशान हो रहे हैं, लेकिन ये तो हमें इस सम्त की तरफ ले जा रही है और ये हमें बता रहा है कि हमारा खुदावंद आ रहा है, ये निशानियां पूरी हो रही हैं। अगर हम में से कोई परेशान है, हम में से कोई बेदिल हो रहा है कि खुदावंद ये सब कुछ क्या हो रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, इतनी जानों का नुकसान हो रहा है, तो खुदावंद ने पहले ही इन सारी चीजों की निशानदेही की है। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि किस कदर ये सारे हालात बुरे हो जाएंगे और हम तो इज़हार सानी की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या हम तैयार हैं? क्या हम उस मुश्किल को देखने के लिए तैयार हैं जो हम पर आने को है, जो हम शायद खुदावंद यीशु मसीह के नाम की वजह से उठाने को हैं? हम तो जरा सी मुश्किल आती है, जरा सी बीमारी आती है तो हम एकदम बेदिल हो जाते हैं और हम शायद अपने पास्टर साहब से कहते हैं कि पादरी साहब हमारी दुआओं का क्या फायदा, हमारा खुदावंद के साथ चलने का क्या फायदा? ये जो दूसरे लोग हैं जो खुदावंद के साथ चलते भी नहीं हैं, वो हमसे ज्यादा सरफराज हैं, वो ज्यादा उन पे तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हम खुदावंद के साथ चलते हैं और हम इतनी मुश्किल में हैं। कई बार हमारे अंदर ये बातें आती हैं, लेकिन खुदावंद का कलाम हमें क्या बताता है? खुदावंद का कलाम हमें यही बता रहा है कि हम जो भी मुश्किल यहाँ यीशु के नाम से उठाते हैं उसका बड़ा अजर है आसमान पर। कभी भी बेदिल ना हो, कभी भी परेशान ना हो किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी परेशानी के लिए, क्योंकि हमारा मसीहा हमारे साथ है। उसने अपने शागिर्दों को उसने दिखाया, वो ये जानता था, वो ऑलरेडी जानता था कि वो कहाँ ईमान उनका कहाँ किस कदर बढ़ चुका है या किस कदर नहीं बढ़ा है, वो कहाँ स्टैंड करते हैं, लेकिन वो उनको टेस्ट कर रहा है। आज अगर खुदावंद हमें टेस्ट करे तो क्या हम इस जगह पर हैं कि हम उस टेस्ट में पूरे उतरें? या कहीं हम भी तो उसके शागिर्दों की तरह ये नहीं कह रहे कि खुदावंद तूने हमें छोड़ दिया, तू हमें हलाक करना चाहता है, हम तो मरे जा रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द तो हलाकतें हो रही हैं, ये तूफान ये पानी हमारे भी कश्ती में आ चुका है। खुदावंद हमें पार ले जाएगा, हम ईमान रखें। आए हम अपनी आंखों को बंद करें और मेरी दरखास्त है कि हम सब खुदावंद के हजूर में इस बात का इकरार करें कि हाँ खुदा
तू हमारे दिल की कश्ती में होना जरूर है, तू हमारी जिंदगियों में होना जरूरी है। और हम ईमान तुझे शो करना चाहते हैं। अब हम इमेच्योर नहीं रहेंगे, बल्कि वो ईमान जो तू हमारे अंदर देखना चाहता है, वो मैच्योरिटी जो तू हमारे अंदर देखना चाहता है, हम वो तुझे शो करेंगे। हम वो अपने ईमानदार बहन भाइयों को शो करेंगे, ताकि हम ना सिर्फ खुद ईमान में बढ़े, बल्कि हम दूसरों का ईमान अपलिफ्ट कर सके, ताकि हम फेथ में दूसरों को बढ़ा सकें, और तेरी आमद तक, तेरे आने तक हम बहुत से और लोगों को तैयार कर लें। ये ना हो कि हम खुद ही कहीं गिर जाएं और यीशु मसीह आ जाए और हम उसके साथ जाने वाले ना हो, बल्कि हम तो ऐसे लोग हों जो खुदावंद अपने मसीहा का इस्तकबाल कर सके। आसमान पर जाने से जाकर हम उड़कर उसको बादलों में देख सकें। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने खुदावंद से बात करना शुरू करें। वो हमारे दरमियान मौजूद है। हमने उसकी सिताइश और प्रस्तुति की और हम उसके मसा को महसूस कर रहे थे। हम देख रहे थे कि किस तरह वो हमें छू रहा है। बेशक खुदावंद हमारे दरमियान में मौजूद है और वो चाहता है कि आज इन लम्हात में वो अगर हमारा ईमान पहले की तरह ना रहा, अगर हमने हमारे अंदर किसी भी तरह की बेदिली आ चुकी थी, ना उम्मीदी आ चुकी थी, आज इन लम्हात में खुदावंद उन तमाम वो बातों को, उस बेदिली को, उस नाउमीदी को हमारी जिंदगी से दूर करने को है। खुदावंद से बात करना शुरू करें। ये लम्हे बहुत कीमती हैं जो हम खुदावंद के हजूर में गुजारते हैं, क्योंकि वो मौजूद है, वो आपके बिल्कुल करीब खड़ा है और वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपके दिल में आना चाहता है। अगर किसी ने आज तक अपनी जिंदगी में उसको वो जगह नहीं दी है जो खुदावंद की है, जो कुछ खुदावंद डिजर्व करता है हमारी लाइफ में, तो उसको अपनी जिंदगी में आने दीजिए। वो हमारे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। हम गा रहे थे कि वो सवाली की तरह खड़ा हुआ है और वो चाहता है कि हमारे दिल में आए। उसको आने दीजिए, उसको जगह दे दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके लिए दुआ करूंगी, हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे खुदा कलाम की बातों के लिए, जो हमें तकवीयत बख्शती हैं, जो हमें जोर और कुव्वत बख्शती हैं खुदा, और हमें तुझ में आगे बढ़ाती हैं। हम वाकई ही ऐ खुदावंद खुदा, जब ऐ खुदा इन मुश्किलात में घिर जाते हैं तो हम कहीं बेदिल होने ना पाए। मैं अपने इन तमाम बहन भाइयों के लिए जो इस वक्त तेरे हजूर में ऐ खुदा हाजिर हैं, जो तेरे सामने झुके हुए हैं, जो तुझसे बात कर रहे हैं खुदा, तेरी हजूरी में मौजूद हैं, मैं एक एक के लिए ऐ खुदा तेरी बंदी होते हुए दुआ करती हूँ और तेरे नाम से इनको बरकत देती हूँ। और ऐ खुदावंद खुदा इनके घरानों को बरकत देती हूँ, इनके बच्चों को बरकत देती हूँ, इनके पेरेंट्स को बरकत देती हूँ। ऐ खुदा इनकी तमाम ऐ खुदावंद खुदा जितनी फैमिलीज हैं, इनकी कलीसियाओं को बरकत देती हूँ। ऐ खुदा तू अपने लोगों को ले, इनका ईमान जाता ना रहे, हमारा ईमान जाता ना रहे ऐ खुदावंद खुदा, बल्कि यीशु मसीह हम तेरी मोहब्बत में बढ़ते चले जाएं, हम तेरे ईमान में बढ़ते चले जाएं, हम तेरी सलीब की तरफ देखें, तेरी मोहब्बत की तरफ देखें जो तूने हम में से हर एक से की है खुदावंद खुदा, और हम ईमान में बढ़ते जाएं, हम एक दूसरे को अपलिफ्ट करें ऐ खुदा। हमारा ईमान जाता ना रहे, बल्कि हम ये जानते हैं कि तू हमें पार ले जाएगा, तू जल्द आने को है हमें लेने के लिए ऐ खुदावंद। हमें से हर एक को तैयारी बख्श दे, हमें से हर एक को रूहानी तौर पर बेदार रहने का फजल अता कर। ऐ खुदा मैं अपने बहन भाइयों के लिए ऐ खुदावंद बरकत की दुआ करती हूँ, प्रॉस्पेरिटी की दुआ करती हूँ। तू ऐ खुदा जिस किसी जगह पर तेरे लोग इस वक्त मौजूद हैं, उस कमरे में ऐ खुदा उस जगह पर तेरी हजूरी ने छुए ऐ खुदा। अपने उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो बीमार हैं, जो किसी तरह की बीमारी में मुब्तला हैं, ऐ खुदा उनके लिए दुआ करती हूँ कि तू अपने लोगों को शिफा बख्श ऐ खुदा, तू छू ले हर तरह की बीमारी यीशु के नाम में जाती रहे, और ऐ खुदा ये बदन शिफा पा जाए। अपने लोगों को बरकत दे ऐ खुदा, जिनकी जरूरत है, किसी तरह के बोझ तले हैं खुदावंत खुदा, तू जानता है, तू दिलों से वाकिफ है खुदा, तू अपने लोगों की जरूरतों को जानता है। तू ऐ खुदा अपने लोगों पर अपने हाथ को बढ़ा अभी और इसी वक्त ऐ खुदावंत छू ले और उस मसले को हल कर दे, उस जरूरत को तू पूरा कर दे ऐ खुदावंत खुदा, और अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। मैं ऐ खुदावंत खुदा तेरा शुक्र अदा करती हूँ इस सारी बरकत के लिए जो आज ऐ खुदा तूने हमें दी है, और ऐ खुदावंत खुदा तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ कि तू हमारे दरमियान आता है और हमें छू लेता है। ऐ खुदावंत तेरा शुक्र हो कि तू अपने मसा और बरकत से हमें भरता है। आज भी तूने ऐसा ही किया है, तूने हम में से हर एक को छुआ है, बरकत दी है। हम सारा जलाल तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
आमीन, आमीन, आमीन आमीन। बहन जी आपका बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और हम दुआ गो हैं खानदान की सूरत में कि खुदावंद आपकी और भाई मिनिस्ट्री को भी बहुत बढ़ाए और बहुत सारी जिंदगियों को जिस तरह ऑलरेडी आप उनके लिए बरकत का बायस मान रहे हैं, इसी तरह और बढ़ते रहें और हम मसीह के खानदान को मजबूत करते रहें। खुदावंद आपको बहुत बरकत। शुक्रिया आपका और आरिफ भाई का भी, क्योंकि उनको कुछ कमिटमेंट थी इसलिए उनको जाना पड़ा, लेकिन थैंक यू उनका भी हमारी तरफ से भी कीजिएगा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और इन सारी बातों के लिए हम खानदान की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू फैमिली। अब चूंकि हमारी थोड़ी सी तरतीब जो उनसे थी वो चेंज हो गई, लेकिन ये है कि हमारे जो एक टेस्टिमनी है जो फैमिली में शेयर करनी है, जो भाई काशिफ सैमुअल शेयर करेंगे, मैं उन्हें दावत दूंगा कि वो अपनी जो टेस्टिमनी उनकी जिंदगी में थी, जो खुदा ने बड़ा काम उनकी जिंदगी में किया है, वो शेयर करें। और इसी तरह फिर मैं नसीर और सदब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि उन्होंने भी हमारे साथ वर्शिप करनी थी, तो प्लीज आप भी हमारे साथ वर्शिप कीजिएगा। तरतीब के लिए